PNP studies on. So today we are going to start with hydrocarbons. Hydrocarbons are composed of hydrogen and carbon, which contains alkanes, alkenes and alkynes. And today we are going to start with alkanes. So what is alkanes? Alkanes are the acyclic saturated hydrocarbons comprising of CC and CH bonds with general formula CnH2n plus 2, where n is the natural number. They are called paraffins, low affinity, owing to absence of functional group or reactive site. Major source of alkanes are petroleum and natural gas. हमको बोलते हैं जो alkanes है वो acyclic saturated hydrocarbons है. एसाइक्लिक सैचुरेटेड का मतलब है यहाँ पे कि साइकिल तो नहीं है, मतलब लीनियरली अरेंज्ड है, जैसे भी अरेंज है ब्रांच में लीनियरली अरेंज्ड है, बस एसाइक्लिक साइक्लिक नहीं है. एसाइक्लिक सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड है. हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एंड कार्बन है. ओके, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 2 वेयर n इज द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो अगर यहाँ पे हम n लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मीथेन बनेगा C1H2 plus 2 4 CH4. Where is the natural number? They are called paraffins because para is low, affins means affinity. They are paraffins because of their low affinity or low reactivity, because they don't have any kind of functional group or reactive site, so they are less reactive or low reactive, low affinity they have, so they are called paraffins. The major natural source of alkanes are petroleum and natural gas. So let us see the structure of alkanes. Alkane is sp3 hybridized because all the carbons of alkanes are bonded with 4 atoms by single covalent bonds. We know the hybridization is, what is hybridization? Surrounded atoms plus lone pair na. How much surrounded atoms are there? 4. So sp3. Let us see the preparation of alkenes. Catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkenes and alkynes. Wurtz reaction, coupling of alkyl halide with sodium. Fittig reaction, Wurtz-Fittig reaction called electrolytic method, and from Grignard reason. Let us start with catalytic hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkenes and alkynes. कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कैटालिटिक मतलब इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे. हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होगा किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होना किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. कौन से होते हैं? अल्कीन्स एंड अल्काइन्स में. इस द नेम सजेस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. So unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes composed of double and triple bonds can be converted into alkanes by passing hydrogen gas in the presence of catalyst. The catalyst may be nickel, platinum and palladium. बस यही बोला इन्होंने कि इसमें अगर हम हाइड्रोजन का ऐड करेंगे, alkanes होते हैं सिंगल बॉन्डेड, alkenes डबल एंड alkynes ट्रिपल. तो डबल बॉन्डेड में और ट्रिपल बॉन्डेड में हम अगर हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजन पास करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट में भी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो वो हमारे पास अल्केन्स बना देंगे. These catalyst metal absorb dihydrogen gas on their surface and weakens the hydrogen bond. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, while nickel requires high temperature and pressure. This reaction is called Sabatier and Sandron's reaction. ये हमको बोल रहे हैं जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, क्या करते हैं? डाईहाइड्रोजन जो है, डाईहाइड्रोजन गैस जो मेटल यूज़ कर रहे हैं ना, कैटलिस्ट मेटल्स ही हैं, तो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इनका ब्रेक हो जाता है, वीक कर देते हैं. हाइड्रोजन डाल रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और फिर वो उस पर जाके अटैच हो जाते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस पे.
लेकिन जब हम निकल का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और निकल के यूज़ करने पे ही इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सबरेटर एंड सेंडर्स रिएक्शन। बिकॉज ये जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था ना ये रिएक्शन, इसलिए उनके ही नेम पे रिएक्शन दे दिया। Alkenes absorb 1 mole of hydrogen to form alkenes, while alkynes absorb 2 mole of dihydrogen to form alkenes. Alkenes क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड करने के लिए एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो एक दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन तो 1 मोल लगेगा, while alkynes में 2 मोल लगेंगे। Wurtz reaction. Second one is Wurtz reaction, coupling of alkyl halide with sodium. When alkyl halide, usually symmetrical, are heated with sodium metal in the presence of dry ether, alkanes are obtained. This reaction is called Wurtz reaction, used for the preparation of symmetrical alkanes. हमको बोल रहे हैं कि अगर हम alkyl halide means RX यूजुअली सिमेट्रिकल, मतलब 2 अल्काइल हैलाइड लेंगे सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और ड्राई इथर की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे। और जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, वाइल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड हैविंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड, बिकॉज वो 2 जुड़ रहे हैं ना, तो उसके डबल नंबर ऑफ होंगे, एक के डबल नंबर ऑफ होंगे अल्काइन्स, अल्काइल हैलाइड्स होंगे। जैसे कि RX, 2 RX है हमारे पास और 2 Na है, तो 2 NaX बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और हमारे पास RR बन जाएंगे, मतलब R जो था ना यहाँ पे वो एक कार्बन था मान लेते, तो एक और R बन के वहाँ पे 2 RR जुड़ के ना, तो RR 2 कार्बन। जैसे कि हम इथेन में देख लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो हमने इथेन बना, मिथाइल में एक कार्बन था, इथेन में 2 कार्बन थे, ठीक है। सेम मैकेनिज्म इसका देखें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होती है आयनिक मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है कि मतलब रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, आर रेडिकल और एक्स रेडिकल, फिर NaX जुड़ जाएगा और RR जुड़ के क्या बन जाएंगे, अल्केन। वैसे न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट देखिए आयनिक मैकेनिज्म, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, R नेगेटिव Na पॉजिटिव जुड़ जाएंगे SN2 रिएक्शन से। हाउएवर इफ़ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर इम्प्लॉयड, यानी हमको बोलना ना कि मतलब इसमें सिमेट्रिकल बनते हैं तो हम इसमें डबल मतलब कि अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते। हाउएवर इफ़ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर इम्प्लॉयड, क्रॉस वुर्ट्ज रिएक्शन, ऑल पॉसिबल अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड। इन्होंने हमको बोला कि भाई अगर हम ये वाला यूज़ करेंगे, क्रॉस वुर्ट्ज रिएक्शन यूज़ करेंगे, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। उससे हमारे पास क्या होगा कि सेपरेशन में प्रॉब्लम होगी, वो खुद के साथ भी जुड़ेंगे दोनों और दोनों आपस में भी जुड़ेंगे, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज in 2 individual member is not easy because their boiling point are close to each other, so the Wurtz reaction is not suitable for the synthesis of alkenes containing odd number of carbon atom, ठीक है। मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही बनते हैं उसमें अल्केन्स में, वो वाले तो बन जाएंगे इजीली क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम लेते हैं ऑड नंबर बनाने के लिए तो हमारे पास वुर्ट्ज रिएक्शन के लिए हमें 2 प्रोडक्ट चाहिएंगे, 2 रिएक्टेंट चाहिएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज, इनको सेपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मीन्स नहीं हो पाते सेपरेट आउट। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये हम नहीं यूज़ करते हैं, सिंथेटिकली हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, हम इसके लिए ओड बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के अल्कीन्स बनाने के लिए हम If zinc is used in place of sodium, then reaction is called Frank-Land reaction. Okay, अगर हम जिंक यूज़ करते हैं सोडियम की जगह तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बोलते हैं। And order of the reactivity of haloalkanes is RF, RCl and RBr. And methane cannot be prepared by this method because हमें 2 अल्काइल हैलाइड को जोड़ना होता है तो वो नहीं बन पाता, एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज अनस्टेबल। Fittig reaction. Aryl halide when treated with sodium metal in the presence of dry ether produces biphenyl or biaryl.
इन्होंने हमको बोला अगर हम फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम अराइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं वुड्स रिएक्शन पे। सिमिलरली हम अराइल हैलाइड लेते हैं फिटिक रिएक्शन में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैकेनिज्म एंड ऑल बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस मैं अराइल हैलाइड लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर इट विल फॉर्म अराइल हैलाइड। लेट अस स्टार्ट विद वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, वुड्स का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। फिटिक में हम क्या यूज़ करते हैं, अराइल हैलाइड। अगर हम इन दोनों को यूज़ कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, aromatic compound, substitute aromatic compound basically. It involves chemical reaction of aryl halide with alkyl halide and sodium metal in the presence of dry ether to give substitute aromatic compound. बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या है, NaX बन जाएंगे 2 और R और जो हमारे पास अराइल ग्रुप है अल्काइल और अराइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। Let us start with Kolb's electrolytic method from the salt of carboxylic acid. Carboxylic acid के salt से हम बनाते हैं क्या, alkenes. Electrolysis of an aqueous concentrated solution of potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed using platinum electrode when a mixture of alkenes and carbon dioxide is produced at anode. हाइड्रोजन को कहा क्या हो कि मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है किसकी, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, किस पे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स पे, और हमारे पास क्या बनेगा, अल्कीन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनोड पे। ठीक है, RCOONA हमने लिया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई वाटर की प्रेजेंस में, हमारे पास इथीन R बन जाएगा, CO2 प्रोड्यूस हो गया एनोड पे, कैथोड पे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन और NaOH। ओके, इसमें क्या होगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CO2 निकल जाएगा, RCOO नेगेटिव में से CO2 निकल जाएगा, R और R जुड़ जाएगा और Na जो है वो OH के साथ चल जाएगा और H2 जुड़ जाएगा। बस मैकेनिज़्म देखते हैं अगर हम इसका, तो ज़्यादा समझने के लिए अच्छे से। एट एनोड पे क्या होती है मैकेनिज्म देखिए, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन्होंने हम क्या कहा कि मतलब RCO नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होकर क्या बन गया, RCOO रेडिकल 2Na पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ही रेडिकल में से वैसे हमने इसको और ब्रेक हो गया, CO2 और CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल कंबाइन होकर क्या बना दिया, इथेन। ठीक है, एनोड पे क्या बना, इथेन और CO2। एनोड पे क्या बनेगा, इथेन और CO2। देखिए कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो सोडियम था उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Na पॉजिटिव जो हमारे पास एनोड वाली रिएक्शन से बना, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वापस से सोडियम बन गया। सोडियम ने क्या किया, OH लिया वाटर से, NaOH बना दिया और H2 निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। H पॉजिटिव ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और H रेडिकल बन गया। H रेडिकल और H रेडिकल मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस और NaOH। एनोड पे क्या बना, इथेन और CO2। At cathode, Na positive and H positive ions are formed by the electrolysis of water. Electrolysis of water will move towards cathode, but H positive ions will be preferentially discharged at cathode because the reduction potential of H positive ion is greater than that of Na positive and K positive. So जो H positive है वो क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा प्रेफरेंशियली। लिमिटेशंस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम इथेनॉइड एंड सोडियम प्रोपेनॉइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, क्रॉस Kolb's reaction, several products are possible, so it is not synthetically useful. Okay, एंड लिमिटेशन अगर यहाँ पे देखिए, सोडियम प्रोपेनॉइड और सोडियम इथेनॉइड में यही हमारे पास कॉल्स का रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जैसे वुड्स में नहीं होती थी।
क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत क्लोज होता है, तो सेपरेट आउट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो सिंथेटिकली यूज़फुल नहीं होता क्रॉस कॉइल रिएक्शन और क्रॉस बूट रिएक्शन। मीथेन नहीं बन पाता बिकॉज यहाँ पे डबल कार्बन हो जाते हैं। मीथेन में सिंगल एक ही कार्बन होता है तो वो नहीं बन पाता। मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड एंड क्रॉस कॉइल रिएक्शन इज नॉट सिंथेटिकली यूजफुल बेसिकली एज इट इज़ रिटन ओवर देयर। और हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन जो है प्रिपरेशन की, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड आर also called Grignard reagent organometallic compound। RMG किसको हम Grignard reagent कह देते हैं और organometallic compound है बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटेलिक कंपाउंड दोनों प्रेजेंट है। Mg भी प्रेजेंट है मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड R भी प्रेजेंट है। Any compound which contains easily replaceable hydrogen or active hydrogen reacts with Grignard reagent to produce alkanes। हमको बोल रहे हैं कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर इजीली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। जो इजीली रिप्लेस हो हाइड्रोजन है तो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर वो रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो अल्केन बनाते हैं। RX और MG को अगर हम ड्राई थ्री पे पास करवाते हैं तो RMGX मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। RMGX को अगर हम वाटर H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वाटर क्या है, वाटर में क्या है H पॉजिटिव आयन चला जाएगा और H नेगेटिव आयन भी चला जाएगा, इसलिए रिप्लेस हो जाता है एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें, तो RH और MgX OH बन जाता है। वैसे ही अगर हम देखें अल्कोहल में तो अल्कोहल में भी क्या है कि H चला जाएगा R के पास और OR चला जाएगा MgX के पास। वैसे ही RNH2 में H चला जाएगा एक R के पास और HNR चला जाएगा MgX के पास। RSH में भी सेम सिमिलरली H चला जाएगा एक्टिव हाइड्रोजन है ना इनके पास, ईजिली रिप्लेस हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बेसिकली। तो क्या होता है R के पास H चला जाता है तो वो अल्केन बना देगा और MgX के पास बाकी ग्रुप चले जाता है। कि अब देखिए अल्काइंस में क्या होता है, अल्काइंस में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एसिड में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो RH MgX COCER बना देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स अगर हम देखते हैं, let us start with the physical properties of alkenes. And physical properties of alkenes such as boiling point, melting point, density, solubility depends on the intermolecular forces of attraction. Since alkenes are almost non-polar, difference in electronegativity between CH and CC is very small. The only intermolecular forces present in alkenes are van der Waals forces or London forces which depends on area of contact। अगर यहाँ बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, तो ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। और हमें पता है कि अल्केन्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है CH और CC में बहुत कम है। ठीक है, आई गेस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 और कार्बन के होते हैं 2.4, तो मतलब बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इनमें। द ओनली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो प्रेजेंट हैं अल्केन्स में, दैट इज van der Waals फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, जो किस पे डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। सो द अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solvent, so they are less dense than water and density is 0.7 ग्राम पर ml। क्योंकि वाटर क्या है भाई, पोलर है, अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर, तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्योंकि वो भी नॉन पोलर होते हैं, तो लाइक डिजॉल्व लाइफ का चक्कर होता है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट का देखिए, बॉइलिंग पॉइंट with the same number of carbon atom, straight chain isomer have higher boiling point compared to branch chain। ब्रांचिंग में क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आइसोमर्स जो होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एनपेंटीन, आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन में एनपेंटीन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उससे कम आइसोपेंटीन का और उससे कम नियोपेंटीन का, बिकॉज इनमें क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांचिंग के साथ साथ क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे। van der Waals फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, सो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सो ये ट्रेंड होगा ब्रांचिंग के साथ। मेल्टिंग पॉइंट इन even number
alkenes, the carbon atom are packed closely, so high temperature is needed to melt the crystal lattice. In odd number alkenes, the carbon atom do not pack well, so they melted at low temperature. जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अल्केन्स में जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वो इजीली पैक्ड आउट हो जाते हैं. वेयर एज इन ऑड नंबर में इतने अच्छे से क्रिस्टल लैटिस नहीं बन पाता, सो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्केन्स हैविंग अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन्स due to the packed structure or crystal lattice. So let us study chemical properties of alkanes. Alkenes are generally unreactive as their CC and CH bonds are stable and not influenced by any acid or base or oxidant अंडर नॉर्मल कंडीशंस. हमको बोल रहे हैं कि जो अल्केन्स है वो अनरिएक्टिव होते हैं बिकॉज जो सी एच और सी सी बॉन्ड है वो स्टेबल है एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एसिड और बेस और ऑक्सीडेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, जो सी सी और सी एच बॉन्ड है वो स्टेबल है, तो अल्केन्स क्या है, अनरिएक्टिव है बेसिकली. लेकिन जो सी सी एंड सी एच बॉन्ड इन अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, हेंस पोलर स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल are unable to attack the bond under normal condition. However, at high temperature or in the presence of UV light, they do undergo oxidation or substitution. ठीक है, तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाती, बट अगर हम हाई टेम्परेचर और यूवी रेडिएशन दे देते हैं तो सब्सटीट्यूशन और ऑक्सीडेशन हो जाती है. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, अल्केन्स ऑन रिएक्शन विद halogens Cl2 Br2 in presence of UV light or high temperature form alkyl halide. The reaction is a substitution reaction in which CH bond is broken and CX bond is formed. Free radical substitution है, alkenes को हम रिएक्ट करवाते हैं हेलोजन से, अल्केन्स को रिएक्ट करते हैं हेलोजन से यूवी लाइट के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे तो अल्काइल हैलाइड बनता है. The reaction is a substitution reaction. For example, methane in excess react with chlorine in presence of UV light to form methyl chloride. अगर हम मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं, मीथेन हमें एक्सेस में लेनी पड़ेगी. ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्सी होती है, अगर हम एक्सेस में क्लोरीन लेते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं. उसके बाद एक्सेस में लेनी पड़ेगी तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाता है और HCl बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हाई टेम्परेचर. The extent of halogenation depends on relative amount of alkene and halogen. Excess of alkane leads to monohalogenation, whereas halogen in excess give a mixture of halogenated product. हमको बोल रहे हैं कि अगर हमने ले लिया बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेलोजन तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएंगे. अगर बोलिए एक्सेस ऑफ अल्केन तो मोनोहैलोजिनेशन होगा. एक्सेस ऑफ अल्केन लेंगे तो एक ही हेलोजन बनेगा, हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनेगा, और बहुत सारे ले लेंगे, बहुत सारे अगर हम एक्सेस में ले लेते हैं हेलोजन तो हमारे पास हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे. रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. Energy input in form of heat or light is necessary for the initiation of halogenation and the reaction proceeds through the free radical mechanism. इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनिशिएशन के लिए लाइट और हीट, और जो इसका मैकेनिज़्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से होता है, मैकेनिज़्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है. लेट अस स्टडी मैकेनिज़्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स. So chlorination of ethane by free radical mechanism. Free radical mechanism comprises of 3 steps: initiation, first, second propagation and third is termination. Initiation में क्या होता है, homolytic cleavage of halogen chlorine molecule by light और heat. ठीक है, क्लोरीन एटम का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, क्लीवेज होगा और क्लोरीन रेडिकल्स बन जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट. प्रोपेगेशन स्टेप में क्या आएगा, रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल बनाना,
chlorine intermediate. Radical intermediate abstract hydrogen from ethane to form ethyl radical, which in next step abstract chlorine atom to regenerate another chlorine atom to continue the chain. हमको बोला कि मतलब जो हमारे पास रेडिकल बना इनिशिएशन स्टेप में वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन एटम और HCl बना देगा, और क्या बना देगा, इथेन रेडिकल बना देगा, इथाइल रेडिकल बना देगा। इथाइल रेडिकल फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड, और क्लोरीन वापस आ जाएगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये सभी जो रेडिकल्स हैं ना आपस में जुड़ जाएंगे। The chain is terminated with two free radical combined to form molecule. This step brings the reaction to the end by decreasing the free radical availability to propagate the reaction. ठीक है, तो जो हमारे पास इथाइल रेडिकल्स थे वो जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। सिमिलरली क्लोरीन रेडिकल जिनके Cl2 बना देंगे, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड करती है। फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, देन प्रोपगेशन स्टेप एंड देन टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, क्लीवेज ऑफ क्लोरीन एटम। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरीन एटम हमारे पास बना, क्लोरीन रेडिकल बना, वो एक्सट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन एंड ऐसे ही प्रोसीड करेगी। टू प्रोपगेशन स्टेप फॉर मोनोहैलोजिनेशन of alkenes when compared with fluorine, chlorine, bromine and iodine for delta H value indicates that both steps are exothermic for chlorination and bromination, endothermic for iodination and highly exothermic for fluorination. This explains why fluorination is violent and chlorination and bromination are feasible and iodination is not possible. ये बताते हैं कि जो दो स्टेप्स हैं हमारे पास कौन से चेन प्रोपगेशन स्टेप के लास्ट वाले जो दो स्टेप है, मोनो हैलोजिनेशन के लिए, एक हैलोजन एडिशन के लिए हमारे पास क्या होता है, दोनों एक्सोथर्मिक है। सो जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के लिए होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, लेकिन आयोडोनेशन के लिए एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं। एंड जो फ्लोरिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक है, वॉयलेंट रिएक्शन है। सो इसीलिए जो ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन वो फिजिबल है एंड आयोडीनेशन हम प्रेफर नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।